How are you? Fine. I hope you like our previous videos. Now, today we have to learn our new skill. Yesterday and day before yesterday, I took you a Pushpa skill. Now we have to learn today controlling. In controlling, how much part I will tell you now. First one, ankle controlling. Second one, instep your foot. Then sole trapping. Then thigh controlling. Then chest controlling. And last one, head controlling. Today we have to learn two controllings, which ankle controlling and inner instep your foot, means side leg in our local language. You know that. Then first you have to start with warm up, then specific skill, then cool down exercise. Afterwards our session will be over. Come on. Let's start from warm up. First I will arrange the cones, then you have to do warm up with me. Okay? First I will arrange the cones, then we have to start our warm up. Now, today we have to do some changes in our warm up. Okay? Today, start with Tadasan. You know Tadasan? Stretch your body upside. Stand on your toes. ताड़ासन के कितने फायदे हैं हम सब लोगों को पता है. ताड़ासन में क्या क्या होता है ये भी पता है. How you have to do, I will show you. Stand on your toes. Stretch your body upside. Slowly walk. Good. Now we have to walk simple. I hope you are watching my video every day and enjoying. I saw your views and all, but you have to send your choices and your doubts. If you have doubts about our skills, send me. I will correct your doubt and I will help you. Understood? Now start the jogging. Slowly. Run on your toes. See my foot, run on your toes, everyone. Very good. Firearms, you have to do the jogging. If you not have place in your home, you have to run in circle. How you have to run in circle, I will show you. See, simple. Understood? Yes or no? Good. High knees. Come on. Stretch your body upside fast. बॉडी ऊपर खींचना है सब नहीं. गुड. ब्रीदिंग दोनों साइड से होना है, नोज से माउथ से भी.
butt kicks. Fast करना है. See my. Very good. Fast, 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 fast. Walk. ब्रीदिंग दोनों साइड से चालू रखना है. Now sideways. Keep your hand like this. हाथ बाजू में रखो और एड़ी मारो. See. Fast. करना है. प्रेस पे करो. Automatically you will go front. Good. Walk. Now, already summer is going on. That's why no need to warm your body. Now I will take your rotation. Rotation means as it is 2 days. Which rotation we have done? That type rotation we have to do. Start from neck rotation. Slowly, slowly you have to do. While doing the neck rotation, open your eyes. Reverse. This rotation is compulsory for football. Up and down. Open your eyes, don't close. Side. Next. Up. Good. Now shoulder rotation. See my hands. Slowly, slowly. Try to join your elbows like this. Reverse. Good. ये बोर नहीं होना है. यही एक्सरसाइज ज़रूरी है हम लोगों को फुटबॉल में. नहीं तो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये आप सबको पता है. वेरी गुड. अप down, up, down, up, down. Good. Now trunk rotation means waist rotation. Slowly, slowly. Slow, slow, slow. ये करना ज़रूरी है आप लोगों को. सबको पता है. ज़्यादा करके अंडर 14, अंडर 17 जो टीम में थे, आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस मालूम है. यू हैव टू टेल टू अदर्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोटेशन. मैं भी बता रहा हूँ, आप भी बताना है. नाउ रिवर्स. वेरी गुड. घर पे कर रहे हो आप सब मेरे साथ या सिर्फ वीडियो देख रहे हो? नहीं, कर रहे. आई हैव ट्रस्ट. गुड. नाउ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या? यस, एंकल रोटेशन. स्लोली स्लोली. दिस रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल. If your ankle will injured, you can't play football. You know that. Reverse. Very good. Up and down, up and down, up and down. Change your leg. Good. 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 Reverse. Reverse. Up and down, up, down. Now we have to do ankle controlling. How you have to do ankle controlling? First I will show you. First listen carefully what is the benefit of
ankle controlling. And what is the benefit of full controlling? If you don't know about controlling, you can't play football. You know very well about that. कंट्रोलिंग अगर आप नहीं कर सकते हो, आपको पता नहीं, तो हम फुटबॉल अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते हैं, ये आप सब लोगों को पता है. इफ़ यू not do the controlling properly, what will happen? Your ball will go far from you and opponent will take your ball. You know that. ये आपका बॉल अपोनेंट अगर ले गया है तो हम लोगों का कुछ बेनिफिट है नहीं. वो अपोनेंट बॉल लेके अपने टीम पे स्कोर कर सकता है या अपने पोजीशन में ये बॉल रख सकता है. इसलिए हम लोगों के पोजीशन में अगर बॉल रहना है तो कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर ये नहीं कर सकोगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, ना आपको ना आपके टीममेट्स को. दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज मस्ट फॉर फुटबॉल. समझ में आ गया ओम? यस सर. कंट्रोलिंग, तू गोलकीपर है, अगर कंट्रोलिंग करेगा तेरा प्लेयर तो तू सेफ रहेगा, नहीं तो गोल पे गोल. यस सर? नो? यस सर. हाँ. Now I will show you first ankle controlling. Afterwards, inner instep of your foot. Yes. Today we have to learn 2 skills. Okay. आपको ये सब सोर्सेज दिख रहे हैं, मार्कर्स. अगर आप लोगों के घर में नहीं है, then you can use your kitchen plates. Small kitchen plate, पता है ना? वो थोड़ा रख सकते हैं. इसमें कुछ भी नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं. छोटा सा चॉक पीस लेके मार्किंग करो, हो जाएगा. ये रहना ही ज़रूरी नहीं है, मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ. ओके. नाउ इन दैट एंकल कंट्रोलिंग, हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव टू टेक, आई विल टेल यू. फर्स्ट योर अप्रोच रन, थ्रो द बॉल. सी माय अप्रोच रन. अंडरस्टूड? देन योर सी, मैं क्या कर रहा हूँ एंकल कंट्रोलिंग के लिए. आप लोग सब घर पे क्रिकेट खेलते हो ना, उसमें कैच हम लोग कैसे पकड़ते हैं? जैसे बॉल ऐसा ऊपर जाता है, हम लोग बॉल के नीचे आते हैं. नीचे आके क्या करते हैं? थोड़ा बॉडी बेंड करते हैं और बॉल को कैच करते हैं. वैसे ही एंकल कंट्रोलिंग में करना है. सपोज देखो, बॉल ऐसा ऊपर जा रहा है तो नीचे जाओ बॉल के, और बॉल के नीचे जाके एंकल रख के बॉल को थोड़ा खींचना है, मारना नहीं है. डोंट बीट द ball. Then I will control the ball. How you have to control the ball? First I will show you. Oh, throw the ball. Yes. See my controlling. Yes. And second look, you have to push the ball. Understood? See. ये कंट्रोलिंग, कौन से भी कंट्रोलिंग 1 फीट के अंदर होना है. कितने फीट के अंदर? 1. अगर ज़्यादा दूर जाएंगे तो कंट्रोल करके कुछ फ़ायदा नहीं है. समझ में आया? You have to do control your ball in minimum in 2 feet, not more than 2 feet or 1 feet. Understood? See how you have to control the ball. See my approach run and push the ball. ओम हाई फेंको, थोड़ा आगे फेंको. यस सर. See, हो रहा है कंट्रोल ठीक से? देख लिया है? बॉल जब ऊपर से आ रहा है तो मैं बॉल के नीचे जा रहा हूँ, बॉल के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ. इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मेरा अप्रोच रन इम्पोर्टेंट है. नहीं तो आप प्लेस पे ऐसा खड़ा रहेगा तो बॉल नहीं आएगा. समझ में आया ना? बॉल के नीचे भाग के जाना है, उसके बाद बॉल को जज करना है. उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है? योर नॉन किकी फुट, मीन्स आपका जो एक्शन का फुट है वो तो आप एक्शन में यूज करेंगे, मगर जो आपका नॉन एक्शन फुट है, वेयर यू हैव टू कीप वेन यू कंट्रोल द बॉल. सी माई लेग. कहा था मेरा दूसरा फुट उसके पैरेलल लाइन में था. पता है ना सबको? ये सबसे ज़्यादा जरूरी है. आगे पीछे रहेंगे तो बॉल कैसा अनकंट्रोल होगा वो भी देखिए. होम थ्रो 3. मैं ऐसा करता हूँ, बॉल कहाँ जा रहा है देखो, ये गलत है. आपको उसके पैरेलल लाइन में योर नॉन किकिंग फुट यू हैव टू पुट इट. अंडरस्टूड? नाउ होम थ्रो द बॉल. यस सर. सी एंड पुश. ओके.
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो पैर पे है उस पर कंट्रोल करना है। देखो ये लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे, समझ में आ रहा है क्या सबको? मैं तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेफ्ट का बॉल राइट पे, राइट का बॉल लेफ्ट पे, ये करना नहीं है, सॉरी। समझ में आ रहा है? देखो सी, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है एंकल कंट्रोलिंग में। फर्स्ट यू अंडरस्टूड, इसमें है अप्रोच रन, देन योर नॉन किकिंग फुट मीन्स और नॉन किकिंग नॉन एक्शन फुट, देन उसके बाद योर बॉडी बैलेंस, आर्म पोजीशन, और उससे सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, योर आई फोकस। आई फोकस, जब तक बॉल को देखोगे नहीं तो अप्रोच रन ठीक से नहीं करोगे, जब तक बॉल पे नज़र नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। और उसके बाद बॉल जब आप अपने प्लेयर को देते हैं या अपने टारगेट पे मारते हैं, उसके बाद आपका फॉलो थ्रू कैसा होना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? व्हाट फर्स्ट थिंग इज अप्रोच रन, योर नॉन किकिंग फुट, देन यू आर रिसीविंग, कैसा रिसीव कर रहे हो बॉल को, कैसा कर रहे हो, एकदम आराम से स्मूथली यू हैव टू पुल द बॉल, नॉट बीट द बॉल, देन यू हैव टू maintain your body balance, then arm condition, then eye focus, and last one follow through. Understood? Now I will teach you inner instead your foot controlling. Understood? See, ओम अभी क्या करना है, बॉल फ्लैट फेंकना है। ऐसा क्या फेंकना है, फ्लैट। ये कंट्रोलिंग ज़्यादा फ्लैट बॉल में यूज होती है, समझ में है? इसको अपन साइड लेग कंट्रोलिंग बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, आपको तो ये पता है। बॉल फेंकते समय पोजीशन भी कैसा रहना चाहिए ये भी देख लीजिए। सी 1 2, अंडरस्टूड? कौन सा भी कंट्रोल करने के बाद 2 ही टच में बॉल फेंकना है अपने अपोनेंट के पास, मीन्स टारगेट पे, नहीं तो अपने प्लेयर को देते समय 3-4 टचेस नहीं करने। तो 1 2, समझ में आया क्या सबको? इसमें मेरा अप्रोच रन देखो कैसा है, ये सोर्सेस उसके लिए रखे हैं। बॉल वहाँ पोजीशन पे आ रहा है तो बॉल पे मैं जा रहा हूँ, बॉल का वेट नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू गो ऑन योर बॉल, डोंट वेट द बॉल। अंडरस्टूड? बॉल का वेट मत करो, बॉल पे हम खुद जाना है, बॉल का वेट नहीं करना है। सी 1 2, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो थ्रो। ये बॉल कंट्रोल करने के बाद मेरा पैर कैसा है, आड़ा पैर रखे वाला है, बॉल को मैं आराम से पीछे खींच रहा हूँ, बॉल मेरे सामने गिर रहा है, फिर मैं पुश कर रहा हूँ। ये कितने टच में हो रही है अपनी एक्टिविटी, 2 टच में। यही सब एक्टिविटी आपको 2 ही टच में करना है, नॉट मोर देन 2 टच। अंडरस्टूड? ओ देखो सी, थोड़ा फ्लैट फेंको बेटा, ओके थ्रो। सी 1, दूसरा शॉट भी दे सकते हैं और पास भी दे सकते हैं, ये तो आप सब लोगों को पता है। When you control the ball, then you pass it or you will kick on your target. 1 2, देखो बॉल मैं कैसा कंट्रोल कर रहा हूँ, 1 2, सिर्फ बॉल को टच कर रहा हूँ और खींच रहा हूँ। देखो देखो, ये 1 फीट के अंदर है बॉल, है ना? देखो 1 2, आपको लगेगा सर एक ही स्टेप से कर रहे हैं, एक ही लेग से कर रहे हैं। देखो 1 2, बॉल कंट्रोलिंग जो पैर पे बॉल आता है वही पैर से करना है, खुद को एडजस्ट मत करो। ये देखो 1, और दूसरे पैर से किक 1, ये शॉट भी मार सकते हैं या पास भी दे सकते हैं। अच्छे से फेंको। यस सर। 1 2, समझ में आ रहा है? मेरा पार्ट कौन सा लग रहा है बॉल को, मैं आपको ठीक से बताता हूँ। देख लिया सबने कौन सा पार्ट लगा, अभी मैं आपको ये डिस्क्राइब करता हूँ बॉल कौन सा पार्ट लगना चाहिए बॉल को, और हम लोगों को बॉल कैसा करना है। वो नज़दीक आओ, मेरे नज़दीक आओ। देखो 1 2, देखो ये देखो कौन सा पार्ट लग रहा है, 1 2, ये साइड लेग लगना चाहिए, ये साइड लेग बॉल के सेंटर में। देखो सी, एक देख, देखो 1 2, देखो 1 2, समझ में आ रहा है? देखो
क्लोज देखो, क्या मार रहा हूँ मैं, बॉल को मारना है, ऐसा मार रहा हूँ क्या, बॉल को मार रहा हूँ क्या, ये नहीं, मैं बॉल को सिंपली स्मूथली बॉल को पीछे खींच रहा हूँ। देखो ये देखो, 1 2, सी 1 2। Now you understood today two techniques we did। अभी इसमें क्या इम्पोर्टेंस है कंट्रोलिंग में, जैसा एंकल कंट्रोलिंग, ऊपर का बॉल आता है तो हम लोग उसको ग्राउंड करते हैं और अपने प्लेयर को पास देते हैं या अपने टारगेट पे बॉल फिनिश करते हैं। दूसरा भी कंट्रोलिंग वही टाइप का है, कौन सी, इनर इंस्टेप फुट का। वो क्या है, बॉल जब फ्लैट आता है तब हम लोगों को ये इनर इंस्टेप फुट यूज़ करना होता है, और ऊपर का बॉल जब आता है तब हमको एंकल कंट्रोलिंग। दोनों भी कंट्रोलिंग हम लोगों को क्या करना है, जजमेंट लेके करना है। व्हेन बॉल विल कम टू यू इन एयर, मीन्स ऊपर से आएगा, ज़्यादा से ऊपर से हाई बॉल आएगा, तब हम लोगों को एंकल कंट्रोलिंग करेंगे। देन बॉल विल कम टू यू फ्लैट लेवल, देन दैट टाइम यू हैव टू यूज योर इनर इंस्टेप फुट, अंडरस्टूड। और ऊपर से आने को एंकल। ये दो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर करना है, याद रखना है और माइंड में सेट करना है। जब मैच में ये चीज़ करनी हो तो हम लोगों को अच्छी तरह से आने चाहिए। स्टूडेंट्स what I am saying continuously, you have to learn this activity very seriously. It is a very important in match, understood। ankle controlling and inner instep of foot, ये कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पासेस के लिए और किकिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। आपको पता है तो भी मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी हम लोगों का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अभी हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू डू कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, afterwards our session will be finished। come on। मज़ा आया आपको, enjoying all, मज़ा आ रहा है कि नहीं। मुझे पता है आपको कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो और खेलते भी हो। इसमें कुछ भी नहीं, 5-10 मिनट कर रहे हैं और बैठ रहे हैं। अभी वी हैव टू स्टार्ट और कूल डाउन एक्सरसाइज। कम ऑन, शेक योर थाइज मसल एंड calf muscle, slowly 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 slowly। see, it is very important when you run, when you stop automatically or purposely, that time our muscle cramp will be happen, you know that। इसलिए हम लोगों को फुटबॉल में क्या होता है, कभी भी भागना पड़ता है, कभी भी रुकना पड़ता है, ये तो आपको पता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बेटा, मसल क्रैम्प होने के चांसेस है। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करना है, स्पेशली इन समर डेज। क्योंकि वाटर इनटेक अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन होने के बाद हम लोग बीमार गिर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी कम हो सकती है। और लॉकडाउन में हम लोगों को क्या करना है, इम्यूनिटी बिल्ड करना है। इसलिए वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करो। नॉर्मली हम वाटर इनटेक 3 या 4 लीटर करते हैं एनी सीज़न, कौन से भी सीज़न में, तो अभी 4 से 6 लीटर होना चाहिए। ये समर है, आपको पता है। अभी लेग स्ट्रेट और शेक योर लेग लाइक दिस और मूव लाइक दिस। समझ में आ रहा है आपको। वाटर इनटेक ज़रूरी है, वाटर इनटेक करो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, नहीं तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है बेटा। इतना एक्सरसाइज आप, मुझे पता है आप पे कुछ भी हावी नहीं होगा, मगर गर्मी ज़्यादा है और वाटर इनटेक करना ज़रूरी है। नाउ अगेन सी, सब लोगों को मज़ा आ रही है, घर पे कर रहे हो मेरे साथ कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो और बस, वीडियो देख रहे हो और बस। नाउ यू हैव टू डू लाइक दिस, बॉडी पीछे खींचो और थाइज आगे नीचे लगाने की कोशिश करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अंडरस्टूड।
ऐसे ही करके टुडेज आवर सेशन इज फिनिश तो हो गया, मगर कल मिलना है नए स्किल के साथ। अंडरस्टूड? देखो, सीखो, फिट रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, तंदुरुस्त रहो। बाय बाय।